الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو معاطات میں تنبیہ رابع میں یہ تھی کہ اصل معاطات تو اعطا ہے، اعطاء طرفینی ہے۔ یہ اعطاء قصد متعاطیین سے اس کی شکل و صورت چینج ہوتی ہے۔ تنبیہ رابع میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اصل اعطاء، اصل معاطات کیا اعطاء ہے من جانبین، لیکن یہ تصور متعاطیین سے چینج ہو جاتا ہے اس کا حکم۔ پہلی صورت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ اعطاء دونوں کرے، نیت دونوں کی تملیک ہو، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا، چونکہ تھوڑا فاصلہ ہوا ہے لہٰذا میں چاہ رہا ہوں مطلب کو ماقبل سے جوڑتے ہوئے تنبیہ رابع میں، کہ اصل معاطات تو اعطاء طرفینی ہے، مگر قصد متعاطیین سے 4 صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ دونوں اعطاء کر رہے ہیں، نیت ہے تملیک کی، جس کے سلسلے میں ہم نے یہ بیان کیا کہ جب ایک آدمی اعطاء کرے گا، تملیک کرے گا، اسی تملیک سے معاطات مکمل ہو جائے گا، بشرطے کہ طرف مقابل اس کو تملک کر لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ان میں سے جس نے اعطاء کیا ہے وہ دے دے اور وہ سامنے والا قبول کر لے، اور قبول کرنے کے بعد وہ مر جائے، تو معاطات مکمل ہو چکا ہے، اس کی پراپرٹی سے، اس کی ملکیت سے اس کا مقابل جو عوض دینا ہے وہ دینا ہو۔ دوسری صورت ہم نے بیان کی تھی کہ دونوں کی نیت کیا ہے؟ دونوں کی نیت اباحت التصرف، دونوں تملیک ہو چکا ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ دونوں نیت میں اعطاء کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں نیت کرے اباحہ کی۔ یہاں پہ اعطاء طرف سے، ایک ہی طرف کے دینے سے تملیک حاصل نہیں ہوگی، اور دوسری یہ کہ اباحہ کے مقابل میں اباحہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی اس سے معاملہ پورا نہیں ہوتا۔ اب اگر ایک نے تملیک کی اور ایک نے اعطاء کیا ہے، قصد کس چیز کا تھا کہ مقابل میں وہ بھی اباحہ کرے، ابھی اس نے اباحہ نہیں کیا، مر گیا، تو یہاں پہ معاملہ ہی واقع نہیں ہوا ہے۔ واضح ہے؟ اس شخص اول کا اعطاء کرنا وہ بھی کس چیز کے مقابل میں؟ خود یہ اباحہ کر رہا ہے اور وہ طرف سے بھی اباحہ کا چاہے، اور اگر اس نے نہیں دیا ہے تو سرے سے معاملہ ہی فاسد ہے۔ اس میں یہ دوسری صورت تھی، دونوں کو اچھا، تو دوسرے میں ایسا ہے نہیں جی، ہاں صحیح، بے ازائے نہیں، دوسرے میں بھی یہی ہے، یعنی ان میں سے ثانیہما یہی کہا ہے، تملیک الاخر مال ہی بے ازائے تملیک مال ہی، یہاں پہ بھی تملیک ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں ایک طرف سے اعطاء ہو چکا ہے، دوسری طرف سے اعطاء نہیں ہوا ہے۔ یہاں پہ اگر دوسرے والا عطا کرنے سے پہلے مر جائے، یہ دوسرا نہیں ہے جی، ابھی ثانی ہم نے ثانی پڑھ لیا تھا، ثالث نہیں پڑھا تھا جی۔ تو ثانی میں یہ ہے کہ ہر ایک نے تملیک کا قصد کیا ہے، مگر ہاں یہ فرق جو بہت مہم ہے وہ یہ ہے، پہلے میں اعطاء ہے، شے دی جا رہی، دوسرے میں تملیک کا صرف قصد کیا جا رہا ہے۔ یہ میں بیان کرنا گڑبڑ کر گیا تھا، توجہ سنیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ مال اعطاء کیا جا رہا ہے، مال کے مقابل میں مال، اب اگر ایک نے اعطاء کر لیا اور دوسرے والے نے اس کو تقبل کر لیا ہے، مبادلۃ مال بے مال کا جو عنوان ہے وہ آ گیا ہے، بس ذمہ داری یہ ہے کہ اس شخص سے ثانی اسے دے گا، اگر مر جائے تو تب بھی معاملہ پورا ہو جائے۔ دوسری صورت میں ہے تملیک مقابل میں تملیک کے ہے، مال نہیں بلکہ عمل، بلکہ فعل، وہ اس طریقے سے کہ میں اپنا مال اسے تملیک کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ وہ بھی اپنا مال مجھے تملیک کرے گا۔ یہاں پہ تملیک مقابل میں تملیک ہے، یعنی عمل مقابل میں عمل کے، اگر ایک طرف سے عمل انجام پایا اور دوسرے نے تملیک نہیں کیا ہے تو یہ مقابل میں اس کے کچھ نہیں آیا، لہٰذا یہ معاملہ فاسد ہے۔ اگر مر جائے کوئی ایک ان میں سے تملیک کرنے سے پہلے تو معاطات حاصل ہی نہیں ہوگا۔ یہ 2 صورت ہم نے پڑھی تھی۔
तीसरी सूरत जो पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी और चौथी सूरत, उसके ऊपर तवज्जो फरमाएं। तीसरी सूरत ये है कि एक उसमें से इबाहा का कस्द करे अपने माल का, मगर मुकाबिल में दूसरे से तमलीक चाहे, माल की मिल्कियत चाहे। ये तीसरी सूरत पढ़ने जा रहे हैं और तीसरी और चौथी सूरत के ऊपर दो अहम इश्काल है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो पहले तीसरी सूरत दोबारा से सुने, वो ये है कि एता ए तरफ़ैनी मुआतात है, एक ने अपने माल को दिया है मगर नीयत ये किया है कि मैं माल पर मालिक नहीं बना रहा हूँ बल्कि अपने माल को उसके तसर्रुफ में दे रहा हूँ। इस नीयत के साथ अपने माल को दे रहा है मगर तरफ मुकाबिल से क्या चाह रहा है, उसके माल की मिल्कियत चाह रहा है। वाज़ेह बात। तो तीसरे में और पहले दूसरे में फर्क क्या हुआ? पहले में माल मुकाबिल में माल के था, दूसरे में तमलीक मुकाबिल में तमलीक के थी, तीसरे में क्या है, इबाहा मुकाबिल में तमलीक के है। वाज़ेह है। तीसरी सूरत यह है कि इबाहा मुकाबिल में तमलीक के है। पहले इबारत इतने पढ़ें। सालिसुहा, इसकी तीसरी सूरत जो हम चार सूरतें तसव्वुर कर रहे हैं, चार सूरतें इस क्यों तसव्वुर हो रही हैं? क़स्द मुताअतियैन की बुनियाद पर चार सूरत बनती है। उसमें तीसरी सूरत ये है अन यक़सुदल अव्वलो, एक क़स्द करे इबाहत मालिही बिइवज़, अपने माल को दे रहा है मुकाबिल में एवज चाह रहा है, मगर वो एवज भी कैसे चाह रहा है? फ़यक़बलुल आख़िरो बिअख़ज़िही इय्याहु, दूसरा वाला इसके माल को कबूल कर रहा है, यानी इसके ऊपर मिल्कियत नहीं आएगी बल्कि इसको तसर्रुफ का हक हासिल होगा आखिर को। लेकिन जब ये कबूल करेगा तो चूंकि पहले वाले की नीयत क्या है कि उसे एवज भी मिले, इस एवज की नीयत से, तो जैसे ही ये सानी आखिर इसको कबूल कर लेगा, इसकी जिम्मेदारी होगी कि अपने माल को अता करे, मिल्कियत में उसकी दे। फ़यक़बलुल आखिर, उसने तो अपने माल को इबाहा के तौर पे दिया है मगर मुकाबिल में एवज चाह रहा है। एवज यानी क्या? यानी माल चाह रहा है और माल के ऊपर मिल्कियत चाह रहा है। इस पे तवज्जो करें, माल के ऊपर मिल्कियत चाह रहा है। तो इस सूरत में जब दूसरा वाला इस नीयत को कि जो पहले वाले की है नीयत से अगर वाकिफ और ये जान रहा हो कि मुझे ये दी जा रही चीज़ इसको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दी जा रही है, मगर मुझे मुकाबिल में 1000 दीनार मसलन उसकी मिल्कियत बना रहा है, तो उसे कबूल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कबूल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि तमलीक करने का, माल देने का इसके ऊपर नीयत कर रहा है। फ़यक़बलुल आखिर बिअख़ज़िही इय्याहु, तो दूसरा वाला जब उसको अख़ज़ करेगा तो क्या होगा? फ़यकूनु अस्सादिर मिनल अव्वल अल इबाहतु बिल एवज़, पहली की तरफ से सिर्फ इबाहा सादिर हुआ है, यानी अपने माल को दे रहा है उसे इस्तेमाल करने के लिए बस, मगर मुकाबिल में उससे एवज़ चाह रहा है। तो पहले की तरफ से क्या सादिर हुआ? इबाहा, मिल्कियत नहीं, इबाहा, और मगर मुकाबिल में उसे एवज चाहिए। व मिनस्सानी, और ये जो बेचारा दूसरा वाला कबूल कर रहा था इसकी तरफ से क्या हो जाएगा? व मिनस्सानी बक़बूलिही लहा अत्तमलीक यकूनु अत्तमलीक, वहाँ फ़यकूनु सादिरु मिनल अव्वल अल इबाहतु बिल एवज़, अल इबाहतु बिल एवज़ यकूनु का फ़ाइल है, कहने कि पहले की तरफ से जो अमल सादिर हुआ है वो क्या सादिर हुआ है? इबाहा मुकाबिल में एवज के। व मिनस्सानी वयकूनु सादिरु मिनस्सानी बेकबूलिही, इस अमल को, इस चीज को जो कबूल कर रहा है, लहा, किसका? इबाहा को जो कबूल कर रहा है इसकी तरफ से क्या हो जाएगा? फयकूनु अत्तमलीक, इसकी तरह से तमलीक हो जाएगी। यानी जो मुकाबिल में शय देगा वो तरफ अव्वल की मिल्कियत बना रहा है, उसकी प्रॉपर्टी बना रहा है, मगर पहला वाला क्या कर रहा था? वो सिर्फ इबाहा का हुक्म कर रहा था मगर मुकाबिल में एवज चाह रहा था। कमा लव सर्रहा बेकौलिही, मिसाल के तौर पे अगर आदमी बोल करके ये मामला करता तो कैसे मामला होता? मसलन इस तरह से होता, अबहतु लका कज़ा बिदिरहमिन, मैं तुम्हें इस शय को दे रहा हूँ। पहला वाला जो बोलता, मैं अबहतु लका, ये किताब मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, आपको मुबाह करार दे रहा हूँ मगर मिल्कियत नहीं बना रहा हूँ। इसके मुकाबले मुझसे मसलन 10 दिरहम चाहिए, तो ये 10 दिरहम क्या है? मिल्कियत बनेगी पहले वाले की, और दूसरे वाले को मिल्कियत हासिल नहीं होगी, सिर्फ उसके ऊपर तसर्रुफ का हक हासिल होगा। वाज़ेह है।
तो तीसरी सूरत क्या बनी, पहले की तरफ से इबाहा मुकाबिल में एवज के, और दूसरे की तरफ से क्या हुआ है, तमलीक हुआ है, तमलीक कर रहा है अपना दिरहम, मगर उसे जो हासिल हो रहा है सिर्फ इबाहा। आया ये मामला दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर क्या इश्काल है, अहम इश्काल है जो आगे बयान करेंगे। चौथी सूरत पे तवज्जो करें। चौथी सूरत बिल्कुल पहली और दूसरी की सूरत के मुशाबे है, मगर पहली के नहीं दूसरे के मुशाबे है। पहली में माल मुकाबिल में माल के था, दूसरे में तमलीक मुकाबिल में तमलीक के थी, दोनों एक दूसरे को माल बना मिल्कियत बनाने। अभी जो चौथी सूरत है वो इबाहा मुकाबिल में इबाहा के है, इबाहा की नीयत ये भी करे अपने शय को देते हुए, और तरफ मुकाबिल भी अपनी शय को दे रहा है इबाहा, यानी दोनों एक दूसरे को मालिक नहीं बना रहे हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के ऊपर तसर्रुफ की इजाजत दे रहे हैं। राबे ओहा, इसकी तसव्वुर की चौथी सूरत मुआतात में यह है, यक़सुदा कुल्लु मिनहुमा अल इबाहता बिइज़ाए इबाहत उखरा, एक इसमें से अपने माल को दे रहा है, मगर उसका कस्द क्या है, मैं अपने माल को इसके लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा हूँ। मुकाबिल में बेइज़ाए, मुझे उसका माल नहीं चाहिए, वो भी अपनी किताब दे, मसलन मैं मोबाइल दे रहा हूँ कि मेरा मोबाइल इस्तेमाल करे, और वो अपनी मसलन किताब दे कि मैं उस किताब को जो है इस्तेमाल करूँ, पढ़ूँ, मिल्कियत नहीं बना रहा है, अब मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ, इसको हदिया नहीं कर सकता हूँ, इसको तोड़ फोड़ नहीं सकता हूँ, ना वो ना मैं। तो यहाँ पे इबाहा मुकाबिल में इबाहा के नीयत के ऊपर है, मुताअतिन की नीयत क्या है, मैं अपना माल दे रहा हूँ इस्तेमाल के लिए, वो अपना माल मुझे दे रहा है इस्तेमाल के लिए। तो अभी ये पहला शख्स जब ये इता करेगा तो नीयत क्या होगी, इस मसलन मैं मोबाइल दे रहा हूं, क्या नीयत है कि मैं इस मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए इसे दे रहा हूं, इसकी मिल्कियत नहीं बना रहा हूं, इसे तोड़ फोड़ नहीं सकता, बेच नहीं सकता है। मुकाबिल में उससे क्या चाह रहा हूं कि अपनी घड़ी वो मुझे दे कि मैं लगाए रहूं, वाज़ेह है। तो यहाँ पे फयकूनो, नतीजा ये निकलेगा फयकूनो इबाहा बेइज़ाए इबाहा, जब कस्द ही इबाहा का है दोनों का, तो नतीजा भी क्या निकलेगा, इबाहा मुकाबिल में इबाहा के होगा। या तो इबाहा मुकाबिल में इबाहा के होगा, या नहीं इससे पहले जो बयान किया गया था पहली सूरत में नहीं दूसरी सूरत में, दाई इबाहा कहो, यानी मैं नहीं कह रहा हूं कि इबाहा ही करे, मगर मेरी चाहत यह है कि इबाहा करे, अंगीजा जिसको हम कहते हैं। और इबाहा बेदाई इबाहा अलामा तक़द्दम नज़ीरुहु फिल वजह सानी, वजह सानी में तमलीक मुकाबिल में तमलीक के थी, उसमें ये बयान किया गया था। दूसरा वाला एक मरतबा हमारी नीयत ये कि तमलीक करे, दूसरी मरतबा एक नहीं, तमलीक की नीयत नहीं, तमलीक की ख्वाहिश है कि अगर वो पूरा करे। यहाँ पे क्या करें कि इसके बरक्स है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इबाहा, और उससे भी चाह रहा हूँ, मेरी गरज ये कि वो इबाहा करे, न ये कि मैं मुतालबा कर रहा हूँ, तब भी चाहे वो सूरत हो और चाहे ये सूरत हो। इस मतलब को एक मरतबा और सुनिए। अमर राबे में, तसव्वुर राबे में ये है, एताए तरफ़ैनी हो रही है, मगर एताए तरफ़ैनी में दोनों तरफ नियत कर रहे हैं कि हम एक दूसरे का माल नहीं बना रहे हैं, मिल्कियत नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा इबाहा मुकाबिल में इबाहा के निकलेगा, या इबाहा मुकाबिल में दाई इबाहा अंगीज़ा इबाहा के साथ होगा, जैसा कि ये बात वजह साने में गुजर चुकी। वो वजह सानी में जो गुजर चुकी है उसमें दो सूरतें बयान की थी, वहां पे एक सूरत जायज थी, एक सूरत जायज नहीं थी। अला नहविल एवज़ियत जायज नहीं थी, अला नहविल दाई जायज थी। यहाँ पे भी यही बता रहे हैं। मिन बयानिया मिन इम्कान तसव्वुर ही अला नहविल दाई, ये जो एता कर रहा हूँ, इबाहा कर रहा हूँ, मेरा तसव्वुर में ये है कि वो भी मुझे अपने माल को इस्तेमाल करने की इजाजत दे। अंगीजा मेरी चाहत ये है कि मैं अपने मोबाइल को मसला दे रहा हूँ, ये इस्तेमाल करे, मुकाबिल में ये अपनी घड़ी भी मुझे इस्तेमाल के तौर पे इस्तेमाल के लिए दे। तो ये जो दे अंगीजा है, इस्तेमाल के लिए हुक्म नहीं है।
दूसरी सूरत एक नहीं, मैं उसे दे रहा हूं अपने मोबाइल को ताकि ये मेरा मोबाइल इस्तेमाल करे, इसकी मिल्कियत नहीं बनेगी, मगर एवज के तौर पर वो अपने घड़ी मुझे दे ताकि मैं उसे इस्तेमाल करूं। तो चाहे अंगीजा एवजियत का हो और चाहे अंगीजा इबाहा हो और चाहे एवज के तौर पर हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मफहूम निकलता है यही कि ना इधर कोई मालिक होगा ना उधर कोई मालिक होगा। अब इन दोनों नजरिए पर, तीसरे तसव्वुर और चौथे तसव्वुर पे दो बड़ा इश्काल है, उस पे तवज्जो करें। वकैफ़ कान फल इश्कालो फी हुक्मिल क़िस्मैनिल अखीरैन, अखीरैन से मुराद तीसरी और चौथी सूरत, जिसमें तीसरी में ये था कि एक इबाहा का मुकाबिल में कस्द कर रहा, दूसरा तमलीक करे, और चौथी सूरत ये थी इबाहा मुकाबिल में इबाहा के। इन दोनों किस्मों में जो हुक्म लगाया जा रहा है उस हुक्म के ऊपर कस्द मुताअतियन अगर इन दोनों का है, किसका, या इबाहा मुकाबिल में इबाहा का या इबाहा मुकाबिल में तमलीक का, इन दोनों सूरतों में फल इश्कालो की खबर नहीं जिक्र हुई है, शरहों में बयान की गई। फल इश्कालो वाक़िउन, इश्काल वाक़े है, किसमें, किस्म सालिस और किस्म राबे के हुक्म में, अला फर्ज कस्दिल मुताअतियैन लहुमा, लहुमा की ज़मीर पलटाइए, वजह सालिस में और वजह राबे में उन दोनों के कस्द से एक इश्काल पैदा हो रहा है। दोनों के कस्द से, मुताअतियन के कस्द से, या दोनों इबाहा कस्द कर रहे हैं या एक इबाहा बिल एवज और दूसरा मुकाबिल में तमलीक, इसमें जो इश्काल है उस पे तवज्जो करें कि दोनों पे इश्काल पैदा हो रहा है। वमनशउल इश्काल अव्वलन, इस इश्काल का सरचश्मा क्या है, कौन सा इश्काल पैदा हो रहा है, इसके ऊपर मुतवज्जह रहें। मनशउल इश्काल अव्वलन अल इश्काल फी सिहहत इबाहत जमीउत तसर्रुफात हत्तल मुतवक्किफत अला मिल्कियतिल मुतसर्रिफ। पहला इश्काल ये पैदा हो रहा है तीसरी सूरत में भी और चौथी सूरत में भी, इधर से क्या है, इबाहा मुकाबिल में एवज के, या दूसरी उसकी बाद वाली सूरत क्या है, इधर से इबाहा है उधर से भी इबाहा। तो यहाँ पे जो तसर्रुफ करने का हम हक दे रहे हैं, पहला शख्स खास तौर से तीसरी और चौथी सूरत में, तीसरी और चौथी सूरत में पहला शख्स क्या है, इबाहा का कस्द कर रहा है ना। बस फर्क ये है कि तीसरे में इबाहा बेएवज है और चौथे में इबाहा क्या है, इबाहा मुकाबिल में इबाहा के है। तो जब इबाहा तो तसर्रुफ करेगा तो क्या तरफ सानी उस शय के ऊपर मालिकाना तसर्रुफ कर सकता है, नहीं। मालिकाना तसर्रुफ में क्या है, कनीज है तो उसके साथ सब कुछ कर सकता है, गुलाम है तो उसको बेच सकता है, राह खुदा में आज़ाद कर सकता है, कोई शय है उसको बेच सकता है, हदिये के तौर पे दे सकता है, विरासत में ईसा वगैरह वगैरह। जितने तसर्रुफात हैं, आया वो तसर्रुफात जो मुतवक्किफ पर मिल्क हैं उन्हें भी कर सकता है, या सिर्फ नहीं जो मुतवक्किफ पर मिल्क नहीं है बस उसे मसलन किताब है तो पढ़ सकता है, फाड़ नहीं सकता है, गुलाम है तो उससे खिदमत ले सकता है, उसको बेच नहीं सकता है, कनीज है तो उससे घर का झाड़ू पोछा करवा सकता है, दूसरा तसव्वुर जो है वो नहीं कर सकता। यहाँ पे कह रहे हैं कि तीसरी सूरत में सिर्फ इबाहा है, मुकाबले में पैसा ले रहा है जरूर, तीसरी सूरत में क्या है, इबाहा कर रहा है मगर पैसा ले रहा है, भले ही वो पैसा ले रहा है तमलीक तरफ मुकाबले से, लेकिन इसकी तरफ से सिर्फ इबाहा है। तो इस इबाहा का मतलब क्या है, आया सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर जो गैर मुतवक्किफ बर मिल्क तसर्रुफात है उन्हें भी, या सब कहने हतमन सिर्फ वो तसर्रुफात होंगे जो मुतवक्किफ बर मिल्क ना हों। इसलिए कह रहे हैं कि इश्काल पैदा, अव्वलन इश्काल फी सिहहत इबाहत जमी तसर्रुफात, तीसरी और चौथी सूरत में ये इश्काल पैदा हो है कि सारे तसर्रुफात नहीं कर सकते, अगर सारे तसर्रुफात करें तो इश्काल पैदा होगा। हत्तल मुतवक्किफत अला मिल्कियतिल मुतसर्रिफ, क्यों, इसलिए कि हमारे पास हदीस मौजूद है, ला बैअ इल्ला फिल मिल्क या लावत या इल्ला फिल मिल्क ला इत्का ला वगैरह वगैरह। शरत मिल्कियत मुतसर्रिफ होनी चाहिए, जो आदमी तसर्रुफ कर रहा है उसकी मिल्कियत होना चाहिए, तब ऐसे मालिकाना तसर्रुफ कर सकता है। और तीसरी सूरत में इबाहा है, चौथी सूरत में पहले की तरफ से सिर्फ इबाहा है। तो इस सूरत में वो तसर्रुफात जो मुतवक्किफ बर मिल्क हैं, अगर उसे तसर्रुफ करना चाहे तो इश्काल पैदा होगा।
हत्तल मुतवक्किफ अला मिल्कियतिल मुतसर्रिफ बेअन यक़ूल, गोया कि वो ये कह रहा है अबाहतु लका कुल्ल तसर्रुफ, क्या ये हो सकता है? नहीं। तीसरे फर्ज में, तीसरे तसव्वुर में और चौथे तसव्वुर में क्या कह रहा है? मुतवज्जे है कि नहीं? अबाहतु लका 1000 दिरहम मुझे दो, तब ये हो गई तीसरी सूरत। अबाहतु लका चौथी सूरत क्या है? तुम भी मुबाह करोगे मुझे अपनी घड़ी। तो ये जो अबाहतु लका कह रहा है, ये अबाहतु लका कुल्ल तसर्रुफ कह रहा है, ये माना निकलता है। अगर तीसरी और चौथी सूरत को देखा जाए तो अगर लफ्जों में उसे बयान करना हो तो इस तरह से बयान करेंगे, क्या? अबाहतु लका कुल्ल तसर्रुफिन मिन दून अन युमल्लिकहु अल ऐना। तीसरी और चौथी सूरत में ऐन का मालिक नहीं बनाया है, फिर भी कह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सारे तसर्रुफात को जायज करार दे रहा हूँ। ये सही है? नहीं सही है। क्यों? इश्काल ये है कि ला बैअ इल्ला फिल मिल्क जो है हमारा गला पकड़ लेगे। शरीयत ने जिन जिन चीजों की इजाजत दी है बस वो इजाजत कारगर होगी। यहाँ पे शरीयत ने ये नहीं कहा है कि आपका माल है तो आप किसी को भी तसर्रुफ करने की इजाजत, उसके शराइत हैं। दायरा मिल्कियत, दायरा मालिक की इजाजत का दायरा महदूद है। ये इश्काल पैदा कर रहे हैं तीसरा और चौथा, तीसरी सूरत और चौथी सूरत के ऊपर दोनों में पहले की तरफ से सिर्फ इबाहा है, पहले की तरफ से सिर्फ इबाहा है। सालिस में और राबे में क्या फर्क है? सालिस में कि वो पैसा दे रहा है और राबे में है कि पैसा नहीं दे रहा, घड़ी इस्तेमाल के लिए दे रहा है। तो कहने की अगर पहला वाला अबाह मुबाह करार दे रहा है तो लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम लफ्ज में इसको बयान करना चाहें तीसरे और चौथे में तो क्या बयान करेंगे कि गोया मैं सारे तसर्रुफात को तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, मुकाबिल में मुझे दिरहम दे। अगर तीसरी सूरत है, मुकाबिल मुझे आप घड़ी अपने इस्तेमाल के दें, अगर चौथी सूरत है। सवाल ये है कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं? करें नहीं। मुतवक्किफा बर मिल्क तसर्रुफ की इजाजत देने शारे इजाजत देगा तब आप मालिक हो गए, तो इसका मतलब ये तो कि आप अपनी कनीज को दूसरे को दे दीजिए, हर इस्तेमाल करने के लिए मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है? तीसरी और चौथी सूरत में इबाहा ही है, मुतलका इबाहा है या नहीं, सवाल ये है। अगर मुतलका इबाहा करें कि हत्ता मुतवक्किफा बर मिल्क तो इश्काल पैदा होता है कि इसकी इजाजत तुम्हें कहाँ से दी है, कि अपना माल है तो दूसरे को जो है मुकम्मल तरीके से मुकम्मल मुतलक इबाहा करने की इजाजत तुम्हें कहाँ से है? जी जी, इबाहत मुतलका ही, यानी कुल्ल शै, जो कुल्ल तसर्रुफ इबारत क्या थे? अबाहतु लका कुल तसर्रुफ, हालांकि मिल्कियत नहीं बना रहा है आइन का। तो तीसरी और चौथी सूरत में आइन का मिल्कियत नहीं बना रहा, फिर भी कह रहा है कि हम सारे तसर्रुफात आपको करने की इजाजत दे रहे हैं। हालांकि लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कस्द ये है, तब भी जो है चूंकि इस लफ्ज, अगर इस कस्द को लफ्ज में बयान करना हो तो कैसे बयान किया जाएगा? अबाहतु लका कुल्ल तसर्रुफ, बगैर मिल्कियत बनाए। तो एक इश्काल तो ये पैदा हुआ, तीसरी और चौथी सूरत में एक इश्काल ये पैदा हुआ। तीसरी सूरत में एक इश्काल और भी है। दूसरा इश्काल ये है, सानियन अल इश्काल फी सिहतिल इबाहत बिल एवज। कौन सी सूरत है ये? कौन सी सूरत है? तीसरी सूरत, जिसमें इबाहा कर रहा अपने माल को मगर मुकाबिल में उसे दिरहम भी चाहिए, यानी मिल्कियत चाहिए। करे वसानियन अल इश्कालो फी सिहतिल इबाहत बिल एवज, वो जो इबाहा अपने माल का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है, मुकाबिल में अवज ले रहा है, ये पलटता है मामला। गोया तीसरा तस्वुर ये है कि शारे की तरफ से ऐसा अक्द मुरक्कब हो रहा है कि जिसमें एक तरफ इबाहा है, दूसरी तरफ तमलीक। ऐसा हमारे पास कोई शरीयत में हुक्म नहीं है। तो वसानियन अल इश्काल फी सिहतिल इबाहत बिल एवज राजिआ इला अक्दिन मुरक्कबिन मिन इबाहा व तमलीक। एक इबाहा और एक तमलीक पर मुश्तमिल कोई अक्द मुरक्कब हो, ऐसा शरीयत में नहीं है। वाज़ेह हुई बात? तो तीसरे वाले पे इश्काल क्या है? तीसरे वाले पे इश्काल, दूसरा इश्काल ये है कि ये अक्द मुरक्कब हो रहा है एक इबाहा से और एक मिल्कियत से। हमारे पास शरीयत में कोई ऐसा अक्द नहीं है कि जिसमें एक तरफ सिर्फ तसर्रुफ हो, इजाजत तसर्रुफ की हो, और दूसरी तरफ से तमलीक हो। ऐसा शरीयत में कोई हुक्म नहीं है। हत्ता एवज़ क्या नाम है, हिबा मुअव्वज़ा भी
अगर आप हिबा मुआवजा कर रहे हैं और उससे चाह रहे हैं कि तरफ भी आपको दे, आपने मतलब अपना मोबाइल दिया और उससे कहा कि भाई अपनी घड़ी आप मुझे देंगे और उसने नहीं दिया, तो यहाँ पे जो है आपने दिया है ये तो मुकम्मल तरीके से दिया, उसने नहीं दिया। आप इस मामले को तोड़ सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते आपकी तरफ से तमलीक हो, उसकी तरफ से इबाहा है, उसने इबाहा के ऊपर काम नहीं किया। करें कि हर मुआमला दोनों तरफ से एक जैसा हो सकता है, यानी तमलीक हो सकता है, माल मुकाबिल में माल हो सकता है, एक इबाहा हो एक तमलीक हो, ये दूसरा इश्काल। फनक़ूल नतीजा कलाम, तो ये जो दो इश्काल है, इस दो इश्काल का वजह क्या है, पहला इश्काल क्यों और दूसरा इश्काल क्यों। फनक़ूल अम्मा इबाहतो जमी तसर्रुफात हत्तल मुतवक्किफा अलल मिल्क। अब अगर हम ये कहें कि तीसरी सूरत में जो एक की तरफ से इबाहा है हत्ता मुतवक्किफा बर, तीसरी सूरत में क्यों, दोनों में, चौथी और तीसरी दोनों सूरत में जो इबाहा कर रहा है ये सारे तसर्रुफात की इजाजत हो हत्ता मुतवक्किफा बल मिल्की की, क्या ये सही हो सकता है किसी तरह से या नहीं। फज़ाहिर अन्नहु ला यजूज, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि एक तरफ से सिर्फ कह रहा, अब लफ्ज अगर इस्तेमाल करे अबाहतु लका जमीउत तसर्रुफात, ये जो जमीयत तसर्रुफात कह रहा है क्या इसको ये कहने की इजाजत है शारे की तरफ से, ला यजूज। क्यों, इसलिए कि तसर्रुफ ऐसा दूसरे वाले को अंजाम देना कि जो मालिकाना तसर्रुफ हो उसके लिए मिल्कियत जरूरी है तसर्रुफ करने वाले के लिए, ला यजूज। क्यों, इज़ तसर्रुफ अल मौकूफ अलल मिल्क ला युसव्वगु लिगैरिल मालिक बेमुजर्रद इज़्न मालिक। हाला बेमुजर्रद मालिक बाद में पढ़ेंगे, इसलिए कि वो तसर्रुफात जो मौकूफ होते हैं मिल्क के ऊपर, ला युसव्वगु लिगैरिल मालिक, गैर मालिक के लिए उसे जायज नहीं करार दिया जा सकता। अब अगर कहें कि ना ठीक है मालिक की तरह, मालिक जो नहीं है उसके लिए जायज करार नहीं दिया, लेकिन जो मालिक है वो जब कह रहा है कि मैं आपको सारे तसर्रुफात की इजाजत दे रहा हूँ तब तो जायज हो जाना चाहिए ना। इस मतलब पे तवज्जो करें कि क्यों जायज नहीं है एक की तरफ से सारे तसर्रुफात की इजाजत हो, हत्ता मालिकाना जो तसर्रुफ होते हैं, बै करना, इत्क करना, तोड़ फोड़ देना, वत करना, क्यों जायज नहीं है, यानी कि क्योंकि वो मालिक नहीं है। जब मालिक नहीं तो उसके लिए ये सारे तसर्रुफात जायज नहीं है। जवाब हम ज़िम्नन ये कहें कि नहीं, मालिक जब इजाजत दे रहा है, कनीज वाला खुद ही इजाजत दे रहा है कि आप इसको सारे तसर्रुफात कर सकते हैं, तब क्यों जायज नहीं, कहें कि नहीं, शारे की तरफ से ऐसा तसर्रुफ की इजाजत कि जो मुतवक्किफ बर मिल्क हो वो जायज नहीं है, शारे के तरफ से दायरा महदूद है बेमुजर्रद इज़्निल मालिक। क्यों, यानी कि इज़्न मालिक से ये तसर्रुफ तो जायज हो जाना चाहिए, कहना नहीं जायज नहीं होगा, क्योंकि तसर्रुफ मुतवक्किफ बर मिल्क ला युसव्वगु लिगैर मालिक, गैर मालिक के लिए जायज नहीं है। बेमुजर्रद इज़्न मालिक, मालिक की तरफ से अगर इजाजत मिल रहा है तो गैर मालिक वो तसर्रुफात भी कर सकता है जो मुतवक्किफ बर मिल्क हो, क्या ये है, कर नहीं। क्यों, फ़इन्न इज़्नल मालिक लैसा मुशर्रअन, इज़्न मालिक कानून गुजार नहीं है, शरीयत नहीं बना देता। इज़्न मालिक ये कि आपने अपनी कनीज को कहा कि जाओ उनका झाड़ू पोछा कर दो, खाना बना दो, बिस्तर लगा दो वगैरह वगैरह, इसकी तो इजाजत आप देंगे तो ये शरीयत के दायरे में है कि शारे ने इसकी इजाजत दी है, लेकिन उससे वती भी करने की आप इजाजत दें मालिक होकर के, गैर मालिक के लिए इसकी इजाजत नहीं है। इज़्नल मालिक लैसा मुशर्रअन, इज़्न मालिक मुशर्रे नहीं है, शरीयत और कानून गुजार नहीं है। वइन्नमा यमज़ी फीमा यजूज़ु शरअन, बस इसकी इजाजत उतने में चलेगी, यमज़ी यानी माजी होना, नाफिज होना, चलना। वइन्नमा यमज़ी, यमज़ी यानी इज़्न मालिक माजी है, चलेगा, फीमा यजूज़ु शरअन, जो शरअन जायज हो बस उसमें, वाज़ेह है। फैज़ा कान बैउल इंसान माल गैरिही लिनफ्सी, अब यहाँ पे आपको इसको समझाने के लिए मिसाल ला रहे हैं, इसको समझाने के लिए कि क्यों भाई अगर मेरी कनीज है मैं दूसरे को दे रहा हूँ, मुबाह कर रहा हूँ और सारे तसर्रुफात की इजाजत दे रहा हूँ, क्यों जायज नहीं है जबकि मैं मालिक हूँ इसका। आप मालिक हैं लेकिन इस तरफ मुकाबिल जो तसर्रुफ करने वाला वो मालिक नहीं है।
اور اس کے لیے ہم نے کیا کہا کہ بلو اذن مالک ہے، لیکن پھر بھی مالکانہ تصرف جو ہو سکتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے فَإِذَا كَانَ بَيْعُ الْإِنسَانِ مَالَ غَيْرِهِ، کوئی آدمی آئے دوسرے مال کو بیچ دے، دوسرے کے مال کو بیچ دے اور اس کی قیمت اپنے لیے لے نفسه، یعنی کیا غیر کے مال کو بیچ رہا ہے اور اس کی قیمت اپنے لیے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں اس کی اجازت ہے مگر اس کی شرطیں ہیں، یعنی کہ فیضا کان بیع الانسان مال غیرہ مفعول ہے، انسان بیچ دے غیر کے مال کو لے نفس ہی اپنے لیے، یعنی قیمت خود لے ہے مال دوسرے کا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کریں بِأَن يَمْلِكَ الثَّمَنَ مَعَ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مُثْمَنًا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ، مثلا ثمن اس کی پراپرٹی میں آئے، اس کی ملکیت بنے، ان یملک الثمن، ثمن کا مالک ہو جائے، جبکہ خروج مثمن کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ من خروج المبیع عن مال غیرہ، غیر کی طرف سے، نہ یہ شرعاً صحیح ہے نہ یہ عقلاً درست ہے۔ واضح ہوئی بات؟ تو کہنے کہ تیسری اور چوتھی صورت میں جمیع التصرفات نہیں ہو سکتے۔ اس کی سادہ سا مثال یہ ہے کہ میں زید کے مال کو بیچ کر کے اس کی قیمت میں اس کا مالک ہو جاؤں، یہ نہ عقلاً صحیح ہے نہ شرعاً صحیح، اس لیے کہنے غیر معقول۔ کہنے کہ اگر انسان غیر کے مال کو اپنے لیے بیچے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں بِأَن یملک الثمن، کہ یہ آدمی ثمن کا مالک ہو جائے جبکہ غیر کے مال کو بیچ رہا ہے، کہنے کہ ایسا کرنا ملکیت غیر کا بیچنا، یعنی ملکیت کسی کی نکلے اور ثمن آپ پائیں، یہ کیا ہے؟ درست نہیں، غیر و معقول ہے۔ کما صرح بہ العلامہ فی القواعد، قواعد الاحکام میں علامہ ہلی نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، کیا کہ اگر غیر کا مال کوئی بیچ رہا ہے، قیمت اپنی جیب میں رکھ رہا ہے، تو یہ نہ شرعاً تو صحیح ہے ہی نہیں، عقلاً بھی صحیح نہیں۔ عقل کیا کہتی ہے، عقلاء کیا کہتے ہیں؟ بھائی جس کا مال ہے قیمت اس کی جیب میں جانی چاہیے، آپ غیر کے مال کو بیچ رہے ہیں اپنی جیب میں لا رہے ہیں، اللہ یہ کہ دوستانہ ہو، پہلے سے اجازت فہوائی ہو یا بعد میں اجازت لے لیں اور یہ بیع فضولی وغیرہ ہو، یا وہ دوسری بات ہے، لیکن عقلی طور پر غیر کے مال کو بیچ کر کے قیمت اس کی جیب میں جانی چاہیے، دوسرے کی جیب میں نہیں۔ کما صرح بہ، جیسا کہ علامہ ہلی نے قواعد میں اس کو بیان کیا۔ فَكَيْفَ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَن يَأْذَنَ فِيهِ، پھر مالک کیسے بھلا اس شے میں اجازت دے سکتا ہے کہ جس کا وہ مالک نہیں ہے، جس کی وہ پراپرٹی نہیں۔ یہ فقیفہ کے ذریعے سے اپنے تیسرے اور چوتھی صورت کو واضح کرنے کی، مالک دوسرے شخص کو اپنی شے کے اوپر معمولی تصرفات کی اجازت تو دے سکتا ہے کہ قلم سے لکھنا ہے، کتاب سے پڑھنا ہے، گھڑی دیکھنا ہے، موبائل چلانا ہے، یہ سب تو کر سکتا ہے، لیکن مالک اپنے مال کو دوسرے کی ملکیت بنائے، سارے تصرفات اس کے حتی متوقف پر ملک کر دے، یہ درست نہیں ہے جب تک کہ اس کے لیے شارع کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ خوب، اب اس کے بعد دو طریقہ آپ کو بیان کرنے کی، ہم دو طریقے سے اگرچہ پہنچ نہیں پائیں گے، دو طریقے سے اس معاملے کو جو ابھی مثال کے طور پہ ذکر کیے جا رہے ہیں اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور سنیے، غیر کے مال کو اس کی ملکیت نکلے اور ثمن میری جیب میں آئے، میں بیچنے والا، میں بیچ رہا ہوں مگر دوسرے کے مال کو بیچ رہا ہوں، وہ جو دوسرے کا مال ہے ملکیت کسی کی جیب سے نکلے، ثمن میری جیب میں آئے، یہ دو طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مالک جس کا مال ہے وہ مالک مجھے نائب بنا دے، تو جو میں بیچ رہا ہوں اس کی طرف سے بیچ رہا ہوں اور ثمن پھر اس کے بعد ہبہ کے طور پہ لے لوں، یہ ایک صورت ہے۔ دوسرے، بیچنے کا ایک مرتبہ وکیل اور نائب بنا دے، اور ایک مرتبہ نے بیچنے کے بعد اپنے مال کی ملکیت میں بنانے کے لیے مجھے اجازت نیابت دے، تو یہ دو طریقہ امکان پذیر ہے، مگر یہ دونوں طریقہ یہاں مفقود ہے۔ توجہ کریں، پہلے اس عبارت کو اور پڑھتے ہیں، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَن يَأْذَنَ فِيهِ،
फिर कैसे वो इंसान की जो मालिक है इसकी इजाजत दे सकता है, यानी इजाजत नहीं दे सकता। नाम के जरिए से इस इजाजत की बात आ रही है, इस मिल्कियत को सही किया जा सकता है कि मिल्कियत किसी जेब से जाए और समन मेरी जेब में है। नाम यसे हो जालिका, जालिका से मुराद वो सारे तसर्रुफात हत्ता जो मुतवक्किफ बर मिल्क हैं, और हमारे शाहिद मिसाल में क्या है कि गैर का माल है और कीमत में उसका मालिक हो जाऊं, इसके लिए इम्कान पाया जाता है। नाम यजूज यसे हो जालिका बेअहदिल वजहैन, दो वजह है, दो सूरत है, दो तरीके से इसको मालिक अपने जो उसकी जेब से निकली है तब मुतवक्किफ बर मिल्क को भी इजाजत दे सकता है। खिलाहुमा फिल मकाम मफकूद, लेकिन हमारे महल गुफ्तगू में जहाँ पे एक तरफ से इबाहा सिर्फ है और दूसरी तरफ से तमलीक है, और चौथी सूरत एक तरफ से इबाहा उधर से भी इबाहा है, इबाहा के बावजूद मुतवक्किफ बर मिल्क भी तसर्रुफ की इजाजत हो सकती है। इसके लिए रास्ते हैं दो अदद, मगर ये दोनों रास्ते महल गुफ्तगू में मफकूद है, नहीं पाए जाते। पहला तरीका हो सकता है पढ़ सकें, वो ये है अयक्सुदल मुबीह, ये जो इबाहा कह रहा है तीसरी और चौथी सूरत में, ये मुबीह अपने हलक कौल ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये कौल जो है चूंकि मुआतात की तो कौल है ही नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं कि बेअयक्सुदल मुबीह बेकौलिही अबहतु लका अन तबीअ माली लिनफ्सिका इंशाअ तौकील लहू फी बैअ मालिही लहू सुम्मा नक़्लु समन इला नफ्सिही बिल-इबा। एक सूरत ये है कि मैं जब इसको सारी चीज मुबाह